everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. So in today's video, as you have read from the title, I read every book recommended by Mostly Sane aka Prajakta Kohli. And this video theme is also one of the inspiration that I took from another booktuber named Jack Edwards, and I follow him religiously. He makes a lot of book recommendations जो उन्होंने पढ़ी. I wanted to make an Indian desi version of it. So Prajakta Kohli, Mostly Sane, has made a lot of videos on books क्योंकि I have seen and I also follow her on Instagram. So I have seen कि वो काफ़ी बुक रीड करती हैं. She is an avid reader. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, because a lot of people have said and मैंने देखा है कि मेरे पिताजी खुद मेरा वीडियो पूरा नहीं चलाते हैं. आधा दिन मुझे देखते हैं बकबक करते हुए एंड देन खत्म, नॉट वॉचिंग इट फर्दर. बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. एंड द फर्स्ट बुक दैट शी रिकमेंड्स इज Norwegian Wood by Haruki Murakami. I have already said a lot about this book and this has been one of my favorite. If you're someone who likes reading love stories but with a twist, you know, typical love story नहीं पढ़नी है but like something very different, वो एक twist है, वो एक life का perception भी different करता है. Like you have a different perception of seeing things. मैं बहुत judgmental थी कुछ चीज़ों को लेकर के in terms of relationships, मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी थी ना जिसको मैं बहुत ज़्यादा जज करती थी. And when I read this book, I really felt you won't be able to guess कि क्या होने वाला है अगला. ये थोड़ा सा वैसा भी सस्पेंस भी रखता है कि आपको नहीं पता कि कहाँ ये बात पहुंचने वाली है. मुझे बहुत पसंद है ये नॉर्वेजियन वुड पढ़ना, एंड व्हेन आई केम टू नो दैट मोस्टली सन हैज आल्सो रिकमेंडेड दिस बुक and I was like, man, very great choice. The second book that she recommends is the Shiva trilogy but with a twist. I'll tell you what the twist is in a bit. The Immortals of Mehlua and The Secret of the Nagas. Now these two books was recommended by her. ये trilogy is one of my favorite trilogies and as I've told before कि मेरी fondness हर book के साथ बढ़ती गई है. तो मैंने तीनों books पढ़ी हैं. Although प्राजक्ता कोहली ने third book नहीं पढ़ी है, this is what she has said, क्योंकि she had heard third book ना spoil कर देगी first and second book को, but actually नहीं करती है. I really want, if Mostly Sane is watching this video, I wish what if she do watch this video. So I would really tell her, please do read the third book and it's an amazing book. It will not spoil the trilogy for you. ये दोनों books definitely बहुत अच्छी हैं because of course every book will take the series a top notch higher, and these two books that she recommends, Chef Kiss. These are some of my favorite books that Mostly Sane has recommended and I really loved reading it. अगर आपको सही में बता रही हूँ ना, लोग मुझसे पूछ रहे थे कोई इजी रीडिंग बुक्स बताना या कोई फन, कोई अच्छी बुक्स बताना. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत फन बुक्स हैं. पढ़ने बैठोगे ना इतनी मस्त चीज़ें पता चलेंगी ना अबाउट शिवा, अबाउट माइथोलॉजी इन अ वे. बहुत एकदम टिपिकल माइथोलॉजी नहीं है बट बहुत चीज़ें पता चलेंगी. जज मत करो इस चीज़ को कि नहीं भगवान के बारे में मैं तो अथीस्ट हूँ एंड ऑल दैट स्टफ. मत जज करो उससे, पढ़ो एज अ नॉर्मल पर्सन ही पढ़ो, बिकॉज इसमें भी शिवा को नॉर्मल पर्सन ही दिखाया. तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ है भाई, पढ़ना चाहिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्टली सेन अनदर वेरी ग्रेट रिकमेंडेशन बाय यू. I really appreciate the fact that she has recommended Shiva trilogy. So yeah, these were the two books that she recommended and these were Chef Kiss. Coming back to another beginner friendly and easy read that Mostly Sane has recommended is The Alchemist by Paulo Coelho. This book an easy read. अगर आप एक बार पढ़ने बैठोगे इस ऑथर की बुक्स, आपको लगेगा कि यार मेरे को इसकी सारी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि इतनी इजी, कितनी प्यारी मॉरल स्टोरी टाइप बुक्स होती है ना भाई साहब. ये मतलब ये बुक ऐसी है ना कि बचपन की कहानियाँ वो जो होती थी ना, जो हमें स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी, दैट एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी देयर यूज्ड टू बी अ मॉरल ऑफ द स्टोरी. ये वही बुक है. मेरे को एक चीज़ पता चली मोस्टली सेन के बारे में, दैट शी रीड्स अ लॉट ऑफ difficult books also. Like she is an avid reader but she reads a lot of crisp and short books. What brings out of her personality is that कि उनको ना थोड़ी बुक्स, ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद है जिसमें एक स्टोरी हो बट वो स्टोरी आपका कितना परसेप्शन ओपन करी, कितना वाइड करी है. बिकॉज एज अ कंटेंट क्रिएटर आई फील यू शुड नॉट कीप योर सेल्फ इन अ बॉक्स. अब तक जो तीनों बुक्स मैंने आपको दिखाई हैं, आई थिंक तीनों बुक्स ऐसी हैं जो आपका अलग ही लेवल का परसेप्शन को लेगी. दुनिया अलग लेवल पे दिखाएगी भाई साहब. दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट अ पर्सनैलिटी विद द चॉइसेस ऑफ बुक्स दैट शी हैज रेड. तो मेरे को तो बड़ा मजा आया यार ये बुक्स पढ़ने में. एंड इफ यू आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर बुक्स दैट यू वॉन्ट टू रीड एंड ईजी एंड क्विक बुक्स, Alchemist is one of them for you. अगर आप मेरी बुक रिकमेंडेशन वीडियोस को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो ना, तो आप जानते होंगे कि मैं अगली बुक के बारे में बात करने वाली हूँ. वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, बट तो अगली बुक है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक.
ये बुक इतनी प्यारी बुक है ना, मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे लेटर्स पढ़ना, मुझे लोगों की मेमोइर्स पढ़ना, मुझे लोगों की डायरीज पढ़ना बड़ा पसंद आता है। 13 साल की लड़की है यार जिसने बुक लिखी है। सिंस इट वॉज हर डायरी, तो एन फ्रैंक का ना आपने ट्रांजिशन देखा है। 13 साल की लड़की कैसे वो चेंज होती है, कैसे उसका एक अलग नेचर, बीइंग अ वेरी चर्पी मुफट लड़की जो ना बोल देती थी जो उसके मन में है, उसने कैसे इवेंचुअली वो अपने मन में बातें रखने लगी और कैसे वो ट्रांजिशन आया ना। सिंस मोस्टली सेन रिकमेंड्स दिस बुक, मेरे को क्या लगा ना कि एक तो ये जो बुक है वो उनकी राइटिंग पे भी बहुत इफेक्ट करता होगा, क्योंकि हाउ ऑब्जर्वेंट एंड फ्रैंक वाज। उसने कैसे अपनी बारे में तो लिखा ही लिखा, बट उसके आसपास जो हो रहा है ना उसके बारे में लिखा, और क्या बढ़िया लिखा। एंड आई वुड से मोस्टली सेन हैज रिकमेंडेड सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, एंड आई रियली लव रीडिंग वट एवर शी इज रिकमेंडेड टिल नाउ। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी फनी बुक के बारे में। एक ऐसी बुक जो मैं कहती आई हूँ कि मेरे पास एक ना ऐसी बुक नहीं थी जो मुझे हंसा सकती है या जिसने मुझे हंसाया। दैट वाज सीरियसली आई एम किडिंग बाय एलन डीजेनेरेस। हूएवर नोज मोस्टली सेन, हूएवर हैज वॉच्ड मोस्टली सेन की वीडियोस नोज कि वो कितनी बड़ी एलन डीजेनेरेस फैन है, हाउ मच इंस्पिरेशन शी टेक्स फ्रॉम एलन डीजेनेरेस। सो शी हैज रिकमेंडेड दिस बुक, एंड दिस बुक मैन, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी फनी बुक है, इतनी लाइट वेट बुक है ना। मैंने तो चैलेंज वीडियो में ये बुक पढ़ी थी। दैट टाइम ऑल्सो आई सेड कि ये बुक मेरे को दूसरे किसी वीडियो के लिए पढ़नी थी। दैट वाज दिस वीडियो, मुझे इस वीडियो के लिए ये बुक पढ़नी थी, बट आई रेड इट इन दैट चैलेंज वीडियो। मोस्टली सेन जो है वो एक कॉमेडी एंड फन स्केचेस, रिलेटेबल कंटेंट बनाती हैं। ऑल दीज बुक्स दैट शी हैज रिकमेंडेड इज समथिंग दैट टेल्स मी अबाउट हर पर्सनैलिटी। ना मैं बताना चाहूँगी कि लाइक मुझे ऐसा लगता है ना कि जितनी भी बुक्स उन्होंने पढ़ी है ना, इज सम वे डिफाइनिंग हर पर्सनैलिटी। उनका कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव होगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन टर्म्स ऑफ फन कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट। दीज वर नॉट ऑल द बुक्स दैट शी हैड रिकमेंडेड, बट ऑफ कोर्स a few of them from that lot. I think there are around 14 books जो उन्होंने जिन पे वीडियोस बनाए हैं। अब तक मैंने जितनी बुक्स उनकी recommendations की पढ़ी है ना, are really amazing. I loved reading it. I loved reading all these 6 books, and I would definitely say कि आप भी ये book पढ़ो. So yeah, these were the 6 books that Mostly Sane recommended and I read them. So yeah, this was it with today's video. And मैंने mostly यार हिंदी में बात करी आज, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है इस चीज़ के लेकर के, बिकॉज मैं बुक रिकमेंडेशन जैसे इंग्लिश बुक्स होती है ना, तो मोस्टली मेरे मुंह से इंग्लिश ही शब्द निकलते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि क्योंकि जब होता क्या है ना कि मैं अगर इंग्लिश में बुक्स पढ़ रही हूँ या इंग्लिश स्टोरीज पढ़ रही हूँ, तो मैं मोस्टली उसी लहजे में बात करना चाहूँगी। ये बहुत अलग चीज़ थी मेरे लिए कि मैंने इतना ज़्यादा हिंदी में बात कर ली while I am recommending English books. So that was it with today's video. I hope you loved watching this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Until we meet, bye.